Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. So the first current affair is, recently ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nation, it has decided to hold first ever joint military exercise in South China Sea. This is very important. Why? Because you all know that South China Sea में चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया से नहीं है, बहुत सारी नेशंस हैं जिसमें एशियन के कुछ नेशन है जैसे फिलीपींस, मलेशिया, राइट. सो दैट्स व्हाई ASEAN हैज डिसाइडेड टू होल्ड इट्स फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज and it's aimed to promote unity, cooperation among the ASEAN member states and highlight the collective strength and the presence in the region, right? So this is very important. ASEAN first joint military exercise in South China Sea. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं about ASEAN. तो ASEAN के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो ASEAN, as you all know, that it is a association of Southeast Asian nation, right? Southeast Asian nation, right? This group was established in year 1967. अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो 8 अगस्त 1967 को ये ग्रुप आपका बना था and presently it's include 10 member nation. 10 member nations are there in ASEAN. So this is a map of all those 10 member nations. We have Laos, we have Myanmar, we have Vietnam, we have Cambodia, we have Malaysia, Thailand, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनाई एंड फिलीपींस, राइट. ये जब ASEAN ग्रुपिंग बनी थी तो इसका एक कम्युनिटी, वन विजन कम्युनिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग बनी थी जो कि आपका ओपन मार्केट की बात करता है, राइट. प्रेजेंट टाइम में ASEAN इज अ लीडिंग ग्रुप लाइक G7 जिसमें आपकी टॉप नॉच इकोनॉमीज है, राइट. इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड to sign free trade agreement with many of the ASEAN members. Recently हमारी ASEAN summit भी हुई थी, ASEAN Digital Summit, if you remember in the January and February, right? So all these points you have to remember. अगर मैं इसके present headquarter की बात करूँ जो ASEAN का headquarter है, so present headquarter is in Jakarta, right? So Jakarta इंडोनेशिया का कैपिटल है. हालांकि अभी इंडोनेशिया ने ये भी डिसाइड करा है कि वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है जकार्ता से नुसांतर, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट इट डाउन. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. दूसरा करंट अफेयर देखते हैं. MSME डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. MSME आज के टाइम पे इफ वी टॉक अबाउट दैट इंडिया वांट टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025-26, MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. तो MSME डे कब हमारा सेलिब्रेट किया जाता है? MSME दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे या उद्यमी भारत MSME डे, ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिस इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर ऑन 26 जून, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट MSME डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज ऑन 27 जून. हालांकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्टअप डे कब बनाते हैं हम, स्टार्टअप डे, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द MSME डे एंड द स्टार्टअप डे. स्टार्टअप डे वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ऑन 16th January एवरी ईयर, राइट. तो 16th January इज स्टार्टअप डे, 27th जून इज MSME डे, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. MSME हमारे इंडिया में एक मिनिस्ट्री भी है. और अगर मैं बात करूं इन विच ईयर MSME ministry was established, तो it was established in the year 2007. 2007 में इंडिया में MSME ministry बनी थी, that is micro small medium enterprises ministry. Alright, now let's move forward to the next current affair. Recently you know that our prime minister visited Egypt, right? So now let's discuss about few points जो हमारे एग्जाम के लिए important है related to India-Egypt strategic partnership. Recently India-Egypt strategic partnership has been take place and this includes 4 major elements. What are the 4 major elements? Political ties, right? Defense ties, security and cooperation, economic engagement, scientific and academic collaboration. अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक डे परेड की, तो उस टाइम पर
हमने इस साल दैट इज इन 2023 हमने इनवाइट किया था इजिप्ट के प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंटली अब्दुल अल सिसी, राइट, he was invited as a chief guest in 2023 Republic Day parade also, right? And now PM Modi has visited to the same country. अगर हम बात करें और क्या क्या हुआ, तो in this particular visit PM Modi also meet the Bora community. तो बोरा कम्युनिटी मेंबर दे हैव अ ancestor roots with India, और बोरा कम्युनिटी मेंबर से मोदी जी जब मिले तो बेसिकली ही विजिटेड अल हकीम मॉस्क। तो ये जो अल हकीम मॉस्क है जो कि इजिप्ट पे है, इसकी जो केयर टेकर कम्युनिटी है दैट इज बोरा कम्युनिटी, राइट। तो ड्यूरिंग द विजिट टू द अल हकीम मॉस्क पीएम मोदी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट द मेंबर ऑफ द बोरा कम्युनिटी। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो, राइट, कायरो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नाइल which is the world longest river, Nile, it is also called as the lifeline of Egypt or a gift of Egypt, because Nile के along ही आपका Egyptian civilization develop हुआ है, and it is also one of the longest river of the world। और ये वहीं पर ड्रेन होती है, नाइल जब अपना डेल्टा बनाती है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के पास, तो ये भी इजिप्ट में। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। और थोड़ा सा बात करते हैं और क्या इस इंपॉर्टेंट हुआ इस समिट में। तो इस समिट में जो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइल, राइट। ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में आपको याद रखना है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही विजिटेड इजिप्ट, he is being bestowed with the highest state honor of the country, that is order of the Nile, right? Order of the Nile highest state award है आपका इजिप्ट का, and this award was established in year 1915 by Sultan Hussein Kamil of Egypt, right? So this point also you have to remember. If I talk about from 2014 till today, more than 13 state honors पीएम मोदी जी को मिल चुके हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हालांकि एक स्टैटिक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है इजिप्ट के बारे में, सुएज कैनाल, जो कि बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुएज कैनाल, राइट, सुएज कैनाल विच कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, राइट, विच कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। दिस सुएज कैनाल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट, राइट। तो इजिप्ट गॉट द नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल इन 1956। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, मतलब इजिप्ट सुएज कैनाल की वजह से अब ज्यादा फेमस है बजाय पिरामिड्स के, ऑल्दो पिरामिड्स आर आल्सो देयर, बट सुएज कैनाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजिप्ट की इकोनॉमी पर से, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दिस इज ही इज द प्रेसिडेंट अब्दुल अल सिसी, आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। सो देखो ये जो पेन रखा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द नाइल, द हाईएस्ट स्टेट ऑनर which is given by Egypt. So this all point you have to remember. चलते हैं आगे और important देखते हैं। Now recently world largest रामायण टेम्पल अभी recently डिसाइड किया गया है बिहार में, राइट, बिहार में प्रिसाइजली ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन होगा किसका, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ पर बन रहे हैं, तो वहां पर बस बिना कुछ सोचे आंसर लगा देना है बिहार। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अभी प्रेजेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो इट इज प्रेजेंटली इन द स्टेट इन द कंट्री कॉल्ड एज कंबोडिया, राइट। आसियान का एक मेंबर है, कंबोडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वर्ल्ड लार्जेस्ट वैदिक टेम्पल, राइट, वैदिक टेम्पल ये कहां पर बन रहा है, तो आंसर लगा देना है यहां पर, इट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में कंस्ट्रक्ट होने वाला है वैदिक टेम्पल, ठीक है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इट विल बी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इन द स्टेट बिहार, प्रिसाइजली द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्चुअल बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दैट इज PM किसान मोबाइल ऐप विद द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। रिसेंटली हमने डिसाइड करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है दैट PM किसान ऐप मेकिंग इट फर्स्ट सेंट्रल वेलफेयर स्कीम टू बी अडॉप्ट सच टेक्नोलॉजी, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट
पीएम किसान मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च करी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो पीएम जो किसान मोबाइल ऐप है उसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर डाल दिया गया है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी है, जैसे कि दिस ईयर, दैट इज द ईयर 2023, द ईयर 2023 is declared by United Nation as a year for the production of millets। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्पेशली वर्ल्ड का इस साल डेडिकेशन है मिलेट्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइट? और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एक हमारे इंडिया में स्कीम चलती है पीएम किसान स्कीम। एक पीएम किसान मोबाइल ऐप है जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर आया है, लेकिन एक पीएम किसान स्कीम भी हम रन करते हैं, ठीक है? तो पीएम किसान, दैट इज किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है? किसान सम्मान निधि योजना, राइट? निधि योजना। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2019 और इस स्कीम में जो भी किसान जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 हेक्टेयर से कम है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयरली 6,000 रुपीज एज सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। दिस इज सब्सिडी स्कीम दैट पीएम किसान स्कीम। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द पीएम किसान सम्मान निधि योजना एंड पीएम किसान मोबाइल ऐप, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में। 2023 is a year that will be dedicated for the production of the millets, international year for the millets, ये हमें याद रखना है, right? So all these points are important. Okay, so that's all from my side. I hope you like this session. Do subscribe our channel. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.